So, welcome to this third session of Be Warrior, Not a Warrior. So, guys, my mission is to spread positivity and awaken the warrior in us because today's situation is lot of pain, lot of anxiety, negativity because of the corona, because of the lockdown. Everywhere we could see lot of negativity. So my intention, my mission is to spread positivity. For that reason, I'm inviting a real life heroes. Yes. So first session I did with the law of attraction coach with the magical Sudipti. The last session I did with the uh, warrior, a true warrior who is athletic, who is um, role model for our kids. Today, I have brought my mentor, a mind trainer, Vikas Nagru. He is from Rajasthan. I have learned from him how to do. I have conducted workshops for kids and for adults for stress-free life and stress-free education. Welcome, sir. Welcome on this show. So before starting the today's session, I would like to introduce myself. I'm Smita. I'm from Pune. I am a mind trainer. Before that, I worked in a medical research as a student, as a researcher for a 12 years. Yes. So in December 2019, I decided to uh, work on myself. I wanted to work on my mindset. I wanted to work on my skill set because while working for a 12 years, I was not satisfied with what I am doing. So I had a thinking that yes, there is a lot of potential I do have, but I it is untouched. So for that reason, I started finding out ways for myself, and where I meet Mr. Vikas Nagru, and from him I actually learn how to do mind training because game everything starts here between your ear and how to control that, because if you learn that technique you can achieve anything and everything. I started my journey as a mind trainer. Now I'm NLP practitioner and a life coach certified by Arfin Khan. So, my friends, this is an great pleasure to have my mentor on this call because Nauru, he is a person who is a founder of Brain Infinity. Yes. So we will have the look at to his journey or his mission. It's all about the stress-free education and stress-free life. So he is a founder and director of Brain Infinity. He's a mind trainer because he believes that if mind is relaxed, the ideas, the potential, true potential come out. And that's the when people can actually achieve more in their life. So his major focus on student and the adults who feel that stress is the part of their life, where he wants to give them a stress-free life and stress-free education. He started saying that बच्चे देख रहे हैं और देख के सीख रहे हैं. Last year we did a Facebook live session because I am his mentee. We went on Facebook live where we have spread that positivity message that बच्चे देख रहे हैं और बच्चे आपको देख के सीख रहे हैं. So we will come to know
from him that what is that mission is and what is about it. He has developed a mobile app where you can actually go and take the workshops, take the exercises which will help you to come out of that negativity, anxiety, depression. Because of the lockdown, because of the corona, many people are feeling lonely, depressed, anxious. So how they can come out of that situation on their own? Because see, कितना भी हम लोग बोल रहे, हम लोग पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहते हैं, बट जब तक आप खुद तैयार नहीं हो वो लेने के लिए, इट इज ऑफ नो यूज. आप इस कॉल पे आए हो, आई रियली वेलकम यू ऑल, because you understood that yes, there is a need to take the action for myself, for my family, for my kids, right? So I appreciate your presence over here. You signed up for today's session, and definitely with this call you will understand, you will learn some beautiful technique, and definitely you will get that positivity booster, right? So that's all about the Vikas sir, and uh, I request you, sir, to give your introduction, because see, whatever I'm saying, it is out of my excitement. I may have missed something, so please share your uh, thoughts. थैंक यू स्मिता मैम, थैंक यू. जय हिंद सभी को, सबको जय हिंद. एंड अदर ऑनेस्टली स्मिता मैम, लास्ट ईयर से जो चेंजेस आप में है ना, दिस इज द ट्रू एग्जांपल. दिस इज द ट्रू एग्जांपल. वो आपके चेहरे पे दिखता है, वो आपकी एक नेचुरल स्माइल में दिखता है, वो जो कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर है, जो अब जो दिख रहा है, जो पहले भी था, जो दिख रहा है, दैट इज ऑल अबाउट ट्यून योर ब्रेन. दैट इज ऑल अबाउट. So there is nothing about my introduction. This is the introduction that like people like you and having a charming smile and having a courageous emotional stability. ये तीन अलग अलग वर्ड है, लेकिन तीनों कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हम आगे निकलते हैं. तो इससे ज्यादा कुछ और इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है. That is more than enough. That is more than enough. And yes, definitely it's my passionate area. मतलब मैं इसको लेके बहुत पैशनेट हूँ, इस फील्ड को लेके बहुत पैशनेट हूँ. मुझे अच्छा लगता है इसमें काम करना. This is not my bread and butter. This is the area जहाँ पर मैं दिन रात काम कर सकता हूँ, शौक से काम कर सकता हूँ. इसके लिए effortlessly. इसीलिए मैंने बैंक की जॉब छोड़ दी थी. Sir, yes. First question I would like to ask you कि ब्रेन इन्फिनिटी है क्या और उसका मिशन क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? Definitely there must be some motto behind that brain infinity. तो आप वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. क्या हुआ कि 10th बोर्ड के अंदर मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे. 11th में एज यूजुअल जैसे टीनेज के साथ होता है, तो मेरा भी थोड़ा ध्यान भटका, इधर उधर हुए हम, और मार्क्स बहुत कम हो गए. लेकिन उस चक्कर में कई ऐसी चीजें होने लगी जो हमें समझ में नहीं आ रही थी. जैसे मेरी राइटिंग स्किल पुअर हो गई, एग्जाम के टाइम पर हम बिल्कुल भूल जाते थे, ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स होने लगी, याद नहीं हो रहा था. देन आई वेंट टू माय टीचर्स, समहाउ मुझे आंसर्स नहीं मिले कि क्या इसका है. तो उसका ये इम्पैक्ट हुआ कि मेरे 12th बोर्ड के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए. मुझे स्ट्रीम चेंज करना पड़ा, साइंस से मुझे किसी और फील्ड में आना पड़ा. देन आई शिफ्टेड टू सम अदर फील्ड. इस तरह मेरे 3 से 4 साल सिर्फ शिफ्टिंग में चले. तो ये तो पता था कि ऐसा तो अचानक नहीं हुआ कि 10th बोर्ड तक जो एक लड़का अबव एवरेज था, अचानक रात को सोया, सुबह उठा, वो बिलो एवरेज हो गया. ऐसा तो पॉसिबल नहीं था. बट देयर आर समथिंग. वो क्या था वो हमें नहीं मालूम. फिर वो जर्नी स्टार्ट हुआ. आईटी में मैंने अपनी पूरी स्टडी किया. उसके बाद आईटी से मुझे मतलब पूरी पढ़ाई कर ली, पापा के पूरे पैसे लगा दिए. फिर पता लगा अच्छा ये आईटी तो मेरे लिए नहीं है. फिर हम बैंकिंग में टर्न हो गए. फिर मैंने मल्टीनेशनल बैंक्स में काम किया, 8 साल जॉब किया मैंने. जॉब जब जॉब हो गया, जब सैचुरेशन एक आ गया, तो मुझे लगा अरे यार ये भी, इस पे भी वो एक इंटरेस्ट एरिया नहीं है जहाँ पे मुझे वो एक वो जो एफर्टलेसली जहाँ पे काम करना है, जिसको किक बोलते हैं, वो मिल रहा हो. देन आई शिफ्टेड टू एजुकेशन. फिर वहां से ये जर्नी शुरू हुआ कि ये जो हमारे साथ हुआ था, मेरा करियर कहीं और अगर होता, अगर मुझे डे 1 पे ये क्लैरिटी मिल जाती कि एग्जैक्टली ब्रेन को कैसे ट्यून करना है. अच्छा, हमें पढ़ाया क्या जाता है?
ब्रेन की पावर अनलिमिटेड है, आप कितनी मर्जी बुक्स को याद कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं, और पता लगता है कि आपसे तो एक लाइन तक याद नहीं हो रही है, आपसे एक फोन नंबर तक याद नहीं हो रहा है, आपसे एक हेडिंग तक याद नहीं हो रही। तो वो बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी दिखता था, साइंस कुछ और बोल रही है, होता कुछ और है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो थी। देन आई केम अप विद द ब्रेन इन्फिनिटी। ब्रेन मींस ब्रेन इन्फिनिटी। यस, मैंने भी साइंस पढ़ा तो मैंने भी एक नाम पिक किया, इन्फिनाइट, यानी कि इन्फिनाइट पावर है, ये तो न्यूरो साइंस बोलती है। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, उस कोर्स को लेके हम ब्रेन इन्फिनिटी को हमने एस्टैब्लिश किया कि ये प्रॉब्लम जो हमारे साथ हुई है वो सबके साथ ना हो, इसलिए मिशन को शुरू किया गया, ब्रेन इन्फिनिटी को वहां से स्टार्ट। ओवर टू यू। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच। मैं इस आज का जो सेशन है वो दैट इज ऑल अबाउट किड्स। सो अभी की जो सिचुएशन है, लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे ऑनलाइन ट्यूशंस ले रहे हैं या ऑनलाइन उनका लर्निंग हो रहा है, माँ बाप घर पे है बट दे कैन नॉट स्पेंड टाइम विद देयर किड्स बिकॉज ऑफ देयर वर्क, क्योंकि वो एक रूटीन सेट हो गया है कि बच्चों को बस लैपटॉप या टैब दे दो, उनका स्कूल चालू है, वो करेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दैट इज मतलब पूरा एकदम केओटिक हो गया है। इस पे उनका रिटेंशन कितना हो रहा है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट कितनी हो रही है, कितना वो पढ़ रहे हैं, इवैल्यूएशन कुछ भी नहीं है उस पे। इस चीज में पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है बिकॉज उनको लग रहा है कि यार ये किस टाइप का एजुकेशन है, कैसे होगा मेरा बेटे का या बेटी का ब्रेन डेवलपमेंट कैसे होगा, वो क्या सीख रहा है, क्वालिटी कितनी हैम्पर हो रही है। तो इस चीज में पेरेंट्स लोग का माइंडसेट क्या होना चाहिए, कैसे वो अप्रोच करे इस चीज को, वो ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि हम बच्चे को हम लोग कैसे प्रिपेयर करें कि वो मेंटली स्ट्रांग रहे, फिट रहे, क्योंकि आप देखोगे मोबाइल एडिक्शन तो है ही, टीवी, बाकी के गैजेट्स जो भी है उस पे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, राइट। तो इससे हो रहा है कि उनका जो डेली एक्टिविटीज का रूटीन था, डिसिप्लिन था, वो पूरा मिस हो चुका है। दे आर नॉट एट ऑल डिसिप्लिन नाउ। जो डेली एक्टिविटीज कर रहे थे, जितनी इफिशिएंटली कर रहे थे, अब उतनी इफिशिएंसी उनमें नहीं है। तो इस चीज को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं? फर्स्ट तो आप पेरेंट्स के लिए बता दो कि उनका माइंडसेट कैसे होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए इस चीज को। बहुत सिंपल है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, जितना कॉम्प्लेक्स इसको बनाया गया ना पेरेंटिंग को, उतनी कभी कॉम्प्लेक्स थी ही नहीं। और यहाँ जो प्रॉब्लम जो आ रही है वो आ रही कंपैरिजन से। कंपैरिजन ये क्या कि आज जो सिचुएशन हुई है वो अनडाउटली बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, सबके लिए अनएक्सपेक्टेड। लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड आता है तभी तो चेक किया जाता है कि हु यू आर। यस। जब कहीं पर अर्थक्वेक आता है, जैसे अभी ताउते आया, जो इतना बड़ा तूफान आया, तो उससे पहले प्रिपरेशन की जाती है ना। उससे पहले सारी प्रिपरेशन रखोगे ताकि किसी तरह की कोई भी कैजुअलिटी हो या कोई इस तरह की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाए, तब आप मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने चाहिए। करेक्ट। और हो क्या रहा है, ऑनेस्टली हो ये रहा है कि हमने कभी इस तरह की तैयारी की नहीं, और इसका इम्पैक्ट आपको लास्ट ईयर पता लग गया। कैसे? जब इस तरह की एक अनवांटेड सिचुएशन हुई तो पेरेंट्स मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, स्कूल मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, और स्कूल और पेरेंट्स के बीच में जो झगड़ा चला वो सबने देखा। यस। अच्छा, आप इम्पोर्टेंट क्या है, इस झगड़े में 3 लोग इन्वॉल्व थे। कौन? स्कूल, पेरेंट एंड टीचर। नुकसान 2 जनों को सबसे ज्यादा हुआ। एक उस बच्चे को जिसके लिए एक मिडिल क्लास बहुत शोर मचाता है कि मेरा सब कुछ मेरे बच्चे के लिए। हम बिल्कुल। मास, हिंदुस्तान में मास कौन है? मिडिल क्लास है। और मिडिल क्लास क्या बोलता है कि मैंने तो अपनी खून पसीने की कमाई बच्चे पे लगा दी। एक डायलॉग, इसका पेट डायलॉग। उधर से स्कूल क्या बोलता है, हमारे पास एक ही काम है, इस बच्चे का डेवलपमेंट करना। इन दोनों की वजह से उस बच्चे का डेवलपमेंट, यस, ऑब्वियसली फिजिकल क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस है। इट्स इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। आपके पास कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नहीं है, तो उसी के अंदर आपको सॉल्यूशन निकालने थे। हुआ उल्टा। उन्होंने, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे हम हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई हो, एग्जाम्पल गलत सेट किया इस टाइम पर एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलने। या
अगर सिर्फ एक लाइन याद रख लेना, किड्स आर वॉचिंग यू, बच्चे देख रहे हैं और देखकर सीख रहे हैं। इसको अगर आप अपने मिरर पे लगा लें, जहां पर हम तैयार होते हैं, अपने किचन के एरिया में लगा लें, डाइनिंग एरिया में लगा लें, एक स्लिप काट के लगा लें, बिलीव मी सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेरेंटिंग गलत हो, और कुछ करने की जरूरत नहीं, वो इतना सिंपल है। एंड डॉक्टर रायटा कावाशिमा है, बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं जापान के, उनकी एक रिसर्च बोलती है, ब्रेन ऑलवेज अंडरस्टैंड ओनली सिंपल वर्ड्स, कॉम्प्लेक्सिटी समझ ही नहीं आती है इसको। लेकिन हमें क्या लगता है कि जितना घुमा फिरा कर बड़ा बताया जाएगा, उतना उसको इंटरेस्ट से सुना जाएगा और उतना उसका इम्पैक्ट होगा। ये गलत थ्योरी है, ये साइकोलॉजिकल थ्योरी बन गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अगर इतनी टैगलाइन भी हम लगा लें, मैं चिल्ला के बोलता हूँ लेकिन मेरे सामने मेरी टैगलाइन लगी हुई है, तो क्या मैं देख के चिल्ला के बोलूंगा? सवाल, आपने किसी सेलिब्रिटी को, इवन और छोड़िए, किसी पॉलिटिशियन को कभी टीवी पे चिल्लाते हुए देखा है? क्या नरेंद्र मोदी जी आके वहां पे गुस्सा करते हैं? क्या कोई एक्टर बाहर आके कोई बदतमीजी से बात करता है? बहुत एडवर्स सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हम एक मास की बात कर रहे हैं, हम एवरेज मास की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस है, सामने कैमरा है। ऐसे घर में मान लो, तो इससे अच्छी पेरेंटिंग क्या होगी? अगर आप घर पे ये मान लो कि आपके घर पर एक टैगलाइन लगी हुई है, आप सीसीटीवी कैमरे के अंदर हैं, जैसे आप बिग बॉस देखते हैं, अगर आप कुछ भी गलत करोगे, सेम कॉपी करने वाला है आपका बच्चा। इससे आसान माइंडसेट नहीं हो सकता। सबसे बढ़िया तरीका यही है, आपका खाने का हैबिट अपने आप चेंज हो जाएगा, आपका बोलने का हैबिट अपने आप चेंज हो जाएगा, पढ़ने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। तो ये सबसे एग्जैक्टली आसान माइंडसेट रहेगा मेरे हिसाब से तो। या क्योंकि हम लोग टोटली मतलब सुबह से शाम तक हम लोग लैपटॉप या मोबाइल पे लगे हैं, और हम लोग बच्चे को बोलते हैं कि प्लीज तुम लैपटॉप मत लो, या तुम मोबाइल पे बहुत देर तक खेलते हो। तो इट इज नथिंग बट कि मतलब हम लोग हिपोक्रेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, राइट? सो डेफिनेटली आपका ये पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल मतलब 200% आई वुड से कि हर एक पेरेंट ने अपने आप में वो इम्बाइब करना चाहिए कि इफ आई वांट माय किड शुड ग्रो इन सच अ मैनर कि जहां पे जाके मुझे वो उस पर प्राउड फील हो, तो एटलीस्ट मुझ में क्या क्वालिटीज है, मुझ में क्या वैल्यूज है, वो मैं उसको दे सकूं। आजकल के पेरेंट्स का ऐसा हो गया है कि हाँ ठीक है, गैजेट दे दिए, गिफ्ट दे दिए, टॉयज दे दिए, हो गया। बट मेरे हिसाब से जब तक पेरेंट्स खुद की वैल्यूज नहीं समझेंगी कि उनके प्रिंसिपल्स क्या है, उनके वैल्यूज क्या है, जो कि वो लेगेसी उनके बच्चे कैरी फॉरवर्ड करे, क्योंकि यही सबसे बेस्ट हम लोग गिफ्ट या कुछ भी दे सकते हैं बच्चों को, तो वो वैल्यूज है और सिर्फ वैल्यूज है। अगर हम लोग कहते हैं कि नहीं तू टीवी देखते देखते मत खा, बट वो डिसिप्लिन हमें भी तो होना चाहिए, राइट? बिल्कुल। तो लास्ट टाइम हमने जो फेसबुक लाइव किया था, तब मेरे भाई ने, मतलब कजिन भाई है, उसने वो देखा था, उस पे हमने बोला था कि डोंट वॉच टीवी व्हाइल यू आर ईटिंग। वो आज तक फॉलो कर रहा है, वो आज तक फॉलो कर रहा है। एंड उसने बोला मुझे कि इन मराठी एल्डर सिस्टर को अक्का बोलते हैं, तो ही कॉल्ड मी अक्का, कि जब मैंने वो तुम्हारा लाइव सेशन देखा तब से आई एम फॉलोइंग दिस। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। सो 1% मतलब जो कि अपने घर में, और सिंपल जो हमारे विचार है, जो हमारे वैल्यूज है, वो बाहर के लोग इजीली अडेप्ट करते हैं, अपने घर वाले नहीं कर पाते, बिकॉज बिकॉज रेजिस्टेंस है फॉर एक्सेप्टेंस। एग्री, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो सेम थिंग है अपने बच्चे के लिए भी। अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, या पेरेंट्स कैसे बच्चों को बता सके कि यार नहीं, खेलने पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। ओके, उनका जो रिलेशनशिप है अभी ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, इंटरेक्शंस बहुत कम हो चुका है, और जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उसमें हमेशा यही पूछा जाता है तेरी पढ़ाई हो गई, तू आज दिन में कितना कितना पढ़ा है तूने, टेबल्स हो गए, ऐसे काइंड ऑफ है। तो वो इंटरेक्शन कैसे वो एम्पावर करे, कैसे वो स्ट्रेंथन करे, क्या होनी चाहिए देखो, बेसलाइंस? बहुत सिंपल सी बात है, एक छोटी सी बात है कि जब तक स्कूल चल रहे थे, जब तक सबकी एक नॉर्मल लाइफ थी, सब कोई ऑफिस जा रहे थे, सब अपना वर्क में थे, सबके स्कूल कॉलेजेस चल रहे थे, तब तक सब सेटल।
फिर अचानक लॉकडाउन हो गया, आपको घर रहना पड़ा, सारे परिवार को इकट्ठा रहना पड़ा और एक लंबे समय के लिए रहना पड़ा। तब पता लगा यार हम एक दूसरे के साथ तो रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि मतलब सॉरी टू से लेकिन वर्ड यूज करना पड़ेगा, इनको झेला ही नहीं जा रहा, चाहे वो कोई बोल रहा हो, है ना? क्यों? क्योंकि तब हमें पता लगा चाहिए ये क्वालिटी है या इसमें ये डिमेरिट्स हैं। तब तक तो क्या एक हमें कम टाइम स्पेंड करने को मिल रहा था। तो वो एक चेक पॉइंट था कि कब हमें अपने आप को इम्प्रूव करने का समय है, कब हम अपने आप को सही करें जिससे हमारे बच्चे हमें सही तरह से फॉलो कर सकें। पहला पॉइंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये सही समय है अगर अपने घर में, देखिए 2 तरह की फैमिली है, या तो न्यूक्लियर या ज्वाइंट। अगर न्यूक्लियर फैमिली है उसको हम सेकंड टॉपिक पे लेंगे। अगर ज्वाइंट फैमिली है, ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने वो टाइम देखा है जो गोल्डन भी था लेकिन थोड़ा सा टफ भी था। उनके पास ऐसी बहुत सारी रियल स्टोरीज हैं अपनी खुद की लाइफ की, चाहे वो उन्होंने पढ़ाई कैसे की, चाहे उन्होंने सुबह 4 बजे उठ के अखबार बांटी हो, चाहे उन्होंने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। एंड बिलीव मी, एक रिसर्च बोलती है जिन बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स स्टोरीज सुनाते हैं, और या पेरेंट्स जो स्टोरी सुनाते हैं रियल लाइफ स्टोरीज, खुद की स्टोरी, उनकी ग्रूमिंग, उनकी पेरेंटिंग का उससे बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि उनके पास एक रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आज से ही अगर जो ऑडियंस सुन रही है, अगर आपके पेरेंट्स अपने बच्चों को वो स्टोरीज सुनाना शुरू कर दें, क्या हुआ था जब आपकी पहली जॉब लगी, क्या हुआ था जब आपके पास खाने के पैसे नहीं थे, तो क्या होता था जब आपको सुबह और शाम को काम करना, ऐसी बहुत हजारों स्टोरीज हैं। बिलीव मी, हर पेरेंट एक बुक लिख सकता है, हर ग्रैंड पेरेंट के पास इतना कुछ है, इतनी स्टोरीज हैं जो किसी मूवी में नहीं होंगी। अगर वो शेयर करने लग जाएं, आपका 50% काम वहीं खत्म हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी वहीं से आनी शुरू हो जाएगी। एक बहुत अच्छा सीरियल आता है, मुझे बहुत पसंद है, बागले की दुनिया। मतलब पर्सनली मैं उसको इतना एडमायर करता हूँ, उन्होंने हमेशा एक ही चीज पे बात की है, ये प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन। उन्होंने कभी किसी चीज को बीच में नहीं छोड़ा, और कोई इतना ड्रामेटिक नहीं है कि वो आपको रियल लाइफ की ना लगे। हर बार उनके पास सॉल्यूशन होता है। तो वो अगर हो जाए हमारी रियल लाइफ में भी, और इतने अवेयर हो जाएं, तो वहां पर बच्चे अपने आप सेटल डाउन हो जाए। दूसरा, अगर मैं बात करूं पेरेंटिंग की, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, शायद मैंने पहले भी एक बार शेयर भी किया था। 8 साल से लेके 12 साल के बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ी हैबिट हो गई, अननोइंगली, नोइंगली नहीं हुआ, ये अननोइंगली हुआ, और जिसमें बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं है, वो पॉर्न की तरफ अट्रैक्ट हो गए। कैसे हुए उसका एक ट्रेवल हिस्ट्री है। लेकिन क्या पेरेंट की जरूरत, क्या पेरेंट को नहीं लगता था कि वहां पे चेक रखें? मैंने अभी तक लगभग 35 केसेस देखे हैं अभी लास्ट 8 मंथ्स के अंदर, 35-36 के करीब। उसमें पहला ये निकल के आया कि बच्चा कुछ चैट कर रहा था, बच्चा कुछ गूगल पे सर्च कर रहा था, समा वो ट्रेवल करते करते ऐसी साइट्स पे पहुंच गया। लेकिन क्या पेरेंट इतना काम नहीं कर सकता था कि वो हिस्ट्री चेक कर ले? हिस्ट्री अगर चेक कर लेता, उसके लिए क्या था, वो खुद पहले सेटल डाउन हो, खुद वो स्टेबल माइंड से हो। और आज का प्रॉब्लम ये है कि हमारा पेरेंट ही स्टेबल नहीं है। यानी कि जिस ब्रैकेट में हम आते हैं, वही एक जो यूथ फैक्टर, जिसको आप यूथ कह लें, आप मिडिल एज बोल लें, वही इस टाइम स्टेबल नहीं है। जिनके बच्चे 8, 10, 11, 12 साल के हैं, वो पेरेंट किस एज में होगा? अप्रॉक्स 33 से लेके 43 के बीच में ट्रेवल कर रहा होगा। तो वो पेरेंट जब स्टेबल नहीं है, XYZ रीजंस हैं, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके बच्चे पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप बच्चे को थोड़ा सा चेक रख लेते हो, चेक का मतलब डाउट करना नहीं है, चेक का मतलब है कि आप रैंडमली उसको देख रहे हो, आप अपनी वेबसाइट चेक कर रहे हो, अपना मोबाइल चेक कर रहे हो, अपना लैपटॉप चेक कर रहे हो कि वो कहाँ ट्रैवल कर रहा है। उससे आपको ये पता लगेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट एरिया क्या है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये बहुत बढ़िया एक बात निकल के आई। मेरा बच्चा मान लो हिस्ट्री चैनल देख रहा है या यूट्यूब पे ऐसे कुछ देख रहा है, कोई 2 लड़के हैं वो गेम खेल रहे हैं, उसको यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो उसके साथ साथ मैं नाम भूल गया उसका, तो बच्चे वो खाली उसको देख रहे हैं, वो उनको अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं। तो पेरेंट को ये पता लग गया कि यूट्यूब पे क्या देख रहा है, पेरेंट को ये पता लग गया अच्छा इसका इंटरेस्ट क्रिकेट की तरफ ज्यादा है, इसका इंटरेस्ट नेशनल जियोग्राफी की तरफ ज्यादा है, इसका इंटरेस्ट कुछ नया रोबोटिक की तरफ ज्यादा है। इंटरेस्ट एरिया पता लग जाता है अगर आप चेक कर लो कि बच्चा क्या देख रहा है। तो उससे आसान तरीका क्या है अपने बच्चे को जज करने का? आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी काउंसलर के पास जाने की, अगर आपको डे 1 पे पता लग जाए कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ डेवलप होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एकेडमिक को मैं एक बार साइड में रखूंगा,
क्योंकि एकेडमिक का हर पेरेंट का अपना सोचने का तरीका है, जबकि रिसर्च अलग बोल रही है, साइंस न्यूरो साइंटिस्ट अलग बोल रहे हैं, टीचर्स अलग बोल रहे हैं, उनकी थ्योरी बहुत बिल्कुल सिंपल है, इस टाइम पढ़ना है, जैसे मर्जी हो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन पेरेंट के पास अलग अलग एक्सक्यूज हैं, ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, जो पॉसिबल इस टाइम नहीं है, जो पॉसिबल है उसमें से आप बेस्ट क्या निकाल सकते हो, वो अप्रोच होनी चाहिए। पॉइंट ये है, सबसे ज्यादा जरूरी है, घर के कामों में बच्चों को इन्वॉल्व करो, आपके बच्चे रेस्पॉन्सिबल हो जाए। मैं मेरे घर की बताता हूँ, मेरा बेटा, मैं शौक से बताता हूँ, मेरा बेटा 11 साल का है, अपनी मदर के साथ फुल टाइम वो घर पे झाड़ू पोछा करने में हेल्प करता है, और ये 3 दिन से शुरू हुआ है, ऐसा नहीं कि पहले से हो गया। वो इतने शौक से कर रहा है, उसको मजा आता है, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद उसको लगता है कि मैंने कुछ हेल्प किया। तो ऑब्वियसली अगर इस तरह का होगा तो फिर बच्चों के ऊपर अपने आप ही असर होगा अच्छी चीजों का, और अच्छी चीजों का जब असर होगा तो फिर ऑब्वियसली फिर आपकी चिंता दूर हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे, उनका रहता है मोटो कि हम लोग को हेल्प करें, बट ऐसा होता है कि हमारा माइंडसेट ये है कि वो काम करने के बजाय वो काम बिगाड़ देंगे, इसलिए वी बिल्कुल से सही है। कि तू यहाँ पे किचन में मत आ, तू ये मत कर, तू ये झाड़ू मत लगा, झाड़ू लगाता कम है और बहुत ज्यादा या ट्रू। मतलब ये मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी पेरेंट्स को, हर एक पेरेंट्स को, बिकॉज हमें, अगर हम लोग थोड़ा सा अपने आप को खुद को मिरर में देख ले कि हमारी परवरिश कैसे हुई थी, हम लोग किस दौर से गुजरे थे, कैसे हमारे पेरेंट्स हम लोग को डील कर रहे थे, वो थोड़ा सा हम लोग सोच ले तो शायद हम लोग के जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आराम से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि मुझे भी कभी तकलीफ होती है तो आई जस्ट गो इनटू माय मेमोरी लेन एंड सर्च कि यार मेरे साथ भी ऐसे हुआ था जब मैं छोटी थी, तो मेरे पेरेंट्स ने क्या किया था, तो मैंने कैसे डील किया। तो आसान मतलब हो जाता है कि यार आपने जो बात बोली कि बच्चे देख रहे हैं और देख कर सीख रहे हैं, इस बात का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, पूरा लाइफ चेंज हो गया है, मतलब होता है। क्योंकि देर इज नो अदर रीजन कि आपका बच्चा अगर अच्छा है तो ठीक है, वो उसने आपके जो अच्छे गुण है आपको जैसे परसीव किया है वो बहुत अच्छी चीजों में किया है। अगर आपका बच्चा किसी निगेटिव या आपसे ढंग से बात नहीं कर रहा है, रिस्पेक्टफुली नहीं कर रहा है, तो उसने कहीं पे आपको देखा है कि आपने भी आपके पेरेंट्स के साथ या किसी कोई रिलेटिव्स है उनके साथ बदतमीजी से बात की होगी, तो उसी ने वही कैप्चर किया है और वही आपको दे रहा है वापस। एग्रीड, 100% एग्रीड, ऐसा ही होता है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। अभी जब लॉकडाउन लास्ट ईयर लगा था, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो कनाडा में फंस गए थे। अब क्या है हमारे घर में, अब क्या है, पहले 1 या 2 बच्चे रह गए, हर किसी फैमिली में 1 या 2 बच्चे हैं, उनसे काम बिल्कुल। नहीं करवाया जाता, वर्कलोड बहुत है, पढ़ाई का लोड बहुत है, इस तरह के एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं। जबकि साइंस ये बोलती है, अगर आप जितना वर्क करवाते हो और मतलब अलग अलग तरह के वर्क करते हो, उससे आपका ब्रेन डेवलप होता है। तो वो हमने छोड़ दिया क्योंकि हम रॉड पे लग गए सिर्फ एकेडमिक के, उससे पूरा उसका डेवलपमेंट हुआ नहीं। अब ये बच्चे कल को कनाडा चले, ये एक रियल, मैं आपको नाम नहीं शेयर कर रहा यहाँ पे, तो कनाडा चले गए, वहां पे लॉकडाउन हो गया, उसको सफाई करने नहीं आती, खाना बनाना नहीं आता, चाय बनानी नहीं आती, सिर्फ एक मैगी वैगी बनानी आती है, कितने दिन सर्वाइव कर लेगा? अगर इसको आता थी, कम से कम वहां पर हेल्पर तो है जो खाना दे रहे हैं आपको, लेकिन बना के तो खुद खाना पड़ेगा। कब तक आप किसी पर डिपेंड रहोगे? तो ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, और बिलीव मी, ये प्रॉब्लम आपको बताऊं कोटा के अंदर भी है। कोटा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि वहां पर हर साल 2.25 लाख बच्चा आता है। तो पहले 3 स्ट्रेस में से पहला रीजन इमोशनल डिस्कनेक्ट तो है ही। पेरेंट अचानक बच्चे को कहीं नहीं भेजता, अपने चाचा ताया के घर भी नहीं भेजता, अपने बुआ के घर भी नहीं भेजता, अचानक उसको वो इतनी दूर भेज देता है कोटा में। उसको अगर मैं साइड में भी रख दूं, तो दूसरा इंपॉर्टेंट, उस बच्चे को हर वो काम करना पड़ता है जिसके लिए घर में मना किया जाता है, क्योंकि वहां पर रूम है, वहां पे आपको छोटे काम, तो अपने चाय का कप तो खुद धोना पड़ेगा, बिल्कुल। अपने अंडरपैंट्स तो खुद धोने पड़ेंगे, अपना ब्रश तो खुद करना पड़ेगा, ब्रश पे पेस्ट टूथपेस्ट तो खुद लगाना पड़ेगा, जिसपे आज हमारा पेरेंट पहले हर हर लगा के देता है उसको। तो वो चीजें उसके लिए स्ट्रेस हो जाता है, इतना काम खुद करो, फिर पढ़ो भी सही, फिर वहां का एनवायरनमेंट का प्रेशर भी झेलो। तो अगर यही काम हम घर से शुरू कर दें तो समस्या ही खत्म हो गई। इससे बिल्कुल। आसान क्या है? बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग बच्चे को इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देना चाहते, नहीं दे देते हैं, वही बिल्कुल। वही प्रॉब्लम है। मतलब
हम लोग भूल चुके हैं कि बच्चे हमसे आए हुए हैं। देयर इज नो, मतलब इंडिविजुअलिटी का जो है वो हम लोग भूल जाते हैं कि ही इज एन, मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल है, उसको उसके भी व्यूज है, वैल्यूज है। वो भले ही आपसे आया हुआ है बट वो एक अलग इंसान है, वो हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग अपने जो सारी चीजें वो उस पे इम्पोज करना चाहते हैं कि नहीं तू ऐसा कर, तू वैसा पहन, ये कर, यहाँ पर मत बैठ, वहां पे मत जा, इन लोगों से बात मत कर, ये फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, वो फ्रेंड्स अच्छे हैं। मतलब हम अपने ही व्यूज इतने ज्यादा थोपते हैं उनपे कि उनमें इंडिपेंडेंस बचता ही नहीं है। वही एक बिल्कुल सही कह रहे हो। वही एक प्रॉब्लम है कि वो फ्री नहीं फील कर पाते, इसलिए वो इंटरेक्शन में जो बाधाएं आती है कि पेरेंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, बट वो अपने फ्रेंड्स के साथ और मे बी फ्रेंड्स के मम्मी पापा के साथ वो फ्रीली बोल पा रहा है, बट वो अपने खुद के मम्मी पापा के साथ नहीं बोल पा रहा है। इट ये इज जो बिकॉज, आपने हाँ इम्पोज वाली बात बोली ना, इम्पोज और हिपोक्रेट ये दोनों ही है। मैं आपको एक एग्जांपल, एक आपको ना इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ। वॉरेन बफे का एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया उनके ऊपर चलता है कि एट द एज ऑफ 10 ही स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और ये बहुत सारे एग्जांपल दिए जाते हैं और बड़े बड़े स्पीकर्स इसका एग्जांपल देते हैं। तो ऐसे हम बैठे थे, अब हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री से हैं, तो हमारा भी डिस्कशन इस तरह का चल रहा था। तो फैमिलीज गेट टुगेदर चल रहा था। वो अपने बच्चे का एग्जांपल दे रहा था, देख वॉरेन बफे ने शुरू किया था और आज कहाँ वो पहुंच गया है, रिचेस्ट ये है वो है। बच्चा था 15 साल का, उसको पेन लेके आना था। उसके फादर ने बोला नहीं नहीं रहने दे, तू गलत पेन ले आएगा, ऐसे पैसे ज्यादा लगा के आ जाएगा। मैंने कहा जिस बच्चे को तुम एक पेन लाने की भी छूट नहीं दे रहे, जो कि एक 7 साल के बच्चे को दे देनी चाहिए थी, आप 7 साल के बच्चे का हाथ में 5-10 रुपए रखो, अपने आप कैलकुलेट करेगा, अपने आप ढंग के लेके आएगा, उसको एक दो बार में समझ में आ जाएगा। उसको आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वॉरेन बफे की कहानी सुना रहे हो उसको आप। क्या मतलब है इस चीज का? क्यों इतना हिपोक्रेट बन रहे हो? क्यों अपने डिसीजन उस पर इम्पोज कर रहे हो? क्यों उस पर इतना प्रेशर डाल रहे हो? ये हर दूसरा पेरेंट करता है। बिल्कुल चाहत है लेकिन करना नहीं है। अच्छा इसको टोके कौन, रोके कौन? बच्चा बोलेगा तो आगे बोलते हो, बच्चे को आप सीधा लेबल कर दोगे ये बदतमीज है, आगे जवाब दे रहा है। जबकि वो तो ये कह रहा था कि आप मुझको एक बार दो तो सही, बट ट्रस्ट करके देखो, लेट मी स्टार्ट। तो अच्छा जो इंटरेस्टिंग क्या है, हमने बाहर से पेरेंटिंग सीख ली, हम वेस्टर्न पेरेंटिंग सीखेंगे, हम बच्चों को डांटेंगे नहीं, हम कान नहीं खींचेंगे, हम थप्पड़ नहीं लगाएंगे। पर्सनली मैं इसको एडमायर नहीं करता, पर्सनली मैं एडमायर नहीं करता। क्यों नहीं डांटे, क्यों नहीं इसका कान खींच सकते हम, एज अ पेरेंट हम क्यों नहीं खींच सकते? लेकिन हमने वेस्टर्न का कल्चर पिक कर लिया, और यहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस शायद मुझसे कनेक्ट भी नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पर्सनल विचार है ना। तो एज एन इंडिविजुअल ये मेरे विचार है कि ये गलत तरीका है पेरेंटिंग का, कि आप कुछ भी मत करो। एक तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन वर्ड, हर हर एक एरिया का अपना एक एनवायरनमेंट है, उसकी भाषा है, उसकी हवा है, उसकी पानी है, उसका अपना एक एनवायरनमेंट है, तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे भुजिया राजस्थान के बीकानेर से जो टेस्ट लेके आता है, आप कहीं कहीं ले आओ वैसा टेस्ट नहीं आ सकता। ऐसी जो हमारा एलोवेरा है, ग्वारपाठा है, जो रेगिस्तान में हो सकता है वो कहीं नहीं हो सकता। ऐसी पेरेंटिंग हर एरिया की अपनी अपनी है। तो बिल्कुल आप इसको एक जनरलाइज नहीं कर सकते आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को ट्रस्ट करना सीखो, उनके साथ बात करने से ज्यादा जरूरी है उनको रेस्पॉन्सिबल बनाना सीखें, उससे आप आगे इसको ले जा पाओगे। अदरवाइज बातें करके, खाली बड़ी बड़ी बातें बोलकर, हिपोक्रेट होके, तो जहां खड़े हैं इससे वह सिचुएशन नहीं हो सकती कि आज हमें ये सिखाना पड़ रहा है इस सड़क पर कचरा मत फेंको, आज हमें ये सिखाना पड़ रहा है कि देखो जो लाइफ सेवर मेडिसिन है उसकी आप कालाबाजारी मत करो। ये कहाँ से आई चीजें, ये कहाँ से आई? ये हमने तो दिए हैं। तो बिल्कुल वाई यू आर इन शॉक, आप अखबार पढ़ के शॉक क्यों जाते हो? तो वो हम कहाँ से हैं, वो लोग हम में से तो आए हैं। तो वो जो है, जो पिछले 30 साल में हमने एजुकेशन में दिया है ना, वो आज हमारा आईना है। बिल्कुल चाहे वो स्कूल के लिए हो, चाहे वो पेरेंट के लिए हो। तो ये तो तय हमें करना है कि हमें कहाँ रहना है। तो हमें अगर इस तरह की सोसाइटी में रहना है तो दिए जाओ जो दे रहे हो। अगर थोड़ी सी अच्छी सोसाइटी चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, हिपोक्रेसी से बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। जब रेस्पॉन्सिबल बनेंगे तो ही काम चलेगा। बिल्कुल। और खुद पर जब तक हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक तो चेंज आएगा नहीं। ये तो बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो मुझे जानना है कि आपने जो ऐप निकाला है, मतलब जो ऐप है उसके बारे में कुछ डिटेल देंगे, मतलब शेयर करेंगे लोगों के साथ। देखिए क्या है कि हमारा ना एक मिशन है जिसका नाम है सफाई
मिशन सफाई स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया। और मेरा क्या मानना है, एक रिसर्च बोलती है जो अभी लॉकडाउन में हुई है, 67% सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ चुकी है। 67% जो सुसाइड का रेट है वो इतना बढ़ चुका है कि पूरे वर्ल्ड में हर 40वें सेकंड में एक सुसाइड होता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है जो मेरे से नॉर्मली पूछा भी जाता है, यार विकास इतनी बड़ी कहानी क्यों कर रहा है, हमारे घर में नहीं हुआ ना, मेरे पड़ोस में नहीं हुआ ना, फिर ये बड़ी बड़ी बातें क्यों? इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। मैंने मास्क लगा लिया और आपसे दूरी भी बना रखी है, तो क्या मैं कोरोना से सेफ हूं क्या? नहीं ना, जब तक सामने वाला सेफ नहीं है, जब तक सामने वाला अपनी पूरी केयर नहीं कर रहा। जैसे आप सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं, आपको अच्छी ड्राइविंग आती है, लेकिन आप ड्राइविंग इसलिए अच्छी कर रहे हैं क्योंकि आपको आती है, साथ ही ट्रस्ट करके चल रहे हैं कि सामने वाला भी अच्छी ड्राइविंग कर रहा होगा, तभी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप अपने डेस्टिनेशन पे आराम से पहुंच जाओगे। सेम चीज हम पे भी लागू होती है। अगर मेरी सोसाइटी में स्ट्रेस है, अगर एक रिपोर्ट बोलती है कि 83% इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, अगर एक रिपोर्ट बोलती है कि 1,30,00,000 लोग टैबलेट पिल्स ले रहे हैं एंजाइटी से फ्री होने के लिए, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि इस टाइम हमारी सोसाइटी ऐसी जगह पर। अच्छा, इसको और सिंपल करते हैं, बहुत सिंपल करते हैं। आपके घर में दो तरह के पेशेंट हैं, जिसको ब्लड प्रेशर है या बहुत क्रिटिकल फिजिकल डिजीज है, कैंसर पकड़ लेता है, और उसी घर में एक ऐसा है जो बाइपोलर होता है, मूड स्विंग्स, हाई मूड स्विंग्स होते हैं, जिसके अंदर आप एकदम अचानक खुश हो जाएंगे, अचानक बहुत एक्सट्रीम गुस्से में चले जाएंगे। किसको मैनेज करना आसान? ऑब्वियसली फिजिकल डिजीज वाले के साथ जिसको मैनेज करना आसान होगा, मेंटल वाले के साथ नहीं। मतलब आज 30 साल पहले अगर आप पीछे देखो तो ब्लड प्रेशर और डायबिटिक कभी हमारा हिस्सा नहीं थे, हमने उसको मान लिया और हर घर में पहुंचा दिया। उसी तरह अब हमने कहना लग गया स्ट्रेस तो बहुत कॉमन है, स्ट्रेस होगा तो ही तो हम कुछ नया रिसर्च करेंगे। दैट इज मतलब बहुत ही रॉन्ग थ्योरी है। स्ट्रेस होगा तो हम कुछ इन्वेंशन करेंगे, ये कभी था ही नहीं। अपने आप को बेवकूफ बनाने का सबसे आसान तरीका है। तो जिस सोसाइटी में स्ट्रेस होगा आप ठीक हो, लेकिन आप सेफ हो क्या? नहीं। और कब क्राइम होता है? जब आपका ये ब्रेन आपको दिल के साथ सपोर्ट नहीं कर रहा। क्राइम कब होता है? जब मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, तब मैं कुछ गलत काम करने जाता हूँ। जब मेरा विजन शॉर्ट होता है तब मैं कुछ गलत काम करने जाऊंगा। जब मेरा लॉन्ग टर्म विजन नहीं है तब मैं गलत काम करने जाऊंगा। तो आप यानी कि सेफ तो नहीं हो। जब सेफ नहीं हो तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये था कि अगर हम एकेडमिक में ही, हमारी पढ़ाई में ही हम 4 साल के बच्चे को ही पकड़ लें। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हमने एक ट्रायल मारा, शायद कहीं और भी होता होगा, आई एम नॉट श्योर। मेरा किंडरगार्टन स्कूल भी है, तो हमने ट्राई किया कि हम एज एन इंडिविजुअल, हमें पुलिस से बहुत डर लगता है। कहीं पुलिस वाला या कभी ये बोल जाए ना कि पुलिस स्टेशन आना है आपको, शायद हमारे हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, क्या काम है ना, एज एन इंडियन। लेकिन बाहर तो ऐसा नहीं है। आप बाहर की बात करते हो, बाहर से कंपैरिजन करते हो, वहां तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमने एक ट्रायल किया कि बच्चे को तो पता ही नहीं है पुलिस के बारे में, हम उनको पुलिस स्टेशन ले जाना शुरू किया। हम 3 बार लेके गए, 3 या 4 बार लेके गए। और वहां क्या करते थे, बच्चे वहां पे जाके देखते थे कि कैसे बैठते हैं, किस तरह की उनकी ड्रेस है, क्या डिसिप्लिन है, कौन सा जेल है, जेल में कौन रहता है। पुलिस वाले मतलब उनका जो रिएक्शन था, दैट इज रियली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। वो उनके लिए टॉफीज लेके आ रहे हैं, उनको शेक पिलाए उन्होंने, उनके लिए मतलब ऐसा उनका वेलकम था बच्चों का जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज वो बच्चा 4 साल का जो 9 साल का हो गया है, क्या वो जिंदगी में कभी पुलिस से डरेगा? वो कॉन्फिडेंट होकर उनसे बात करेगा। मतलब अगर सही समय पर इसमें सही फीडिंग कर दें, सही चीजें डाल दें, इसका मतलब ये होगा कि आप सही पेरेंटिंग कर रहे हो, सही तरह की एजुकेशन दे रहे हो। वही हमें चाहिए। इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम एप्लीकेशन लेके आए। एप्लीकेशन का पर्पस ये है कि हर उस बच्चे तक हम पहुंच सकें जिसको मेरे जैसी प्रॉब्लम आई थी, जिसका कंसंट्रेशन का चैलेंज है। जैसे एक क्लास में 3 तरह के बच्चे हैं, एवरेज, बिलो एवरेज और एक्सीलेंट। रेशियो पकड़ के देखें, एक्सीलेंट होंगे 3 से 5%, एवरेज पकड़ूं तो 72% के करीब, और जो बिलो एवरेज होंगे लगभग 17 से लेकर 19%। बिलो एवरेज और एक्सीलेंट को छोड़ दूं, इनको दोनों को टीचर से कोई मतलब नहीं। जो एवरेज है उसका एक ही मोटो है कि मुझे किसी तरह अबव एवरेज होना है। उसका कभी मोटो ये नहीं कि वो डाउन होना है। लेकिन उसका कॉमन प्रॉब्लम है, मेमोरी अच्छी नहीं है, उसको अटेंशन नहीं मिलती, उसको उसे लिखना नहीं आता, उसको राइटिंग का, उसको रीडिंग का प्रॉब्लम है। अगर हम उस प्रॉब्लम को दूर कर दें
ऑब्वियस सी बात है वो अबव एवरेज जाएगा, उसका फोकस अपने करियर पे रहेगा, अदरवाइज वो बिलो एवरेज जाएगा। तो वो सब चीजें हमने एप्लीकेशन पे डाली, जिसका बेनिफिट कोई भी बच्चा उठा सकता है। इनफैक्ट नॉट ओनली बच्चा, अब बड़ा भी उठा सकता है। बड़ा कैसे? अभी जैसे आपने कभी चुंबक देखी है? चुंबक क्या है? मैग्नेट। व्हाट इज अ मैग्नेट? और मैग्नेट की पावर क्या है? मैग्नेट एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है? लोहे के टुकड़े में मैग्नेटिक पावर आ जाती है, जिससे वो अपने भार से, अपने वेट से 12 गुना, मतलब 12 मल्टीप्लाई वेट उठा सकता है। Why? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक पावर है। सेम विद अस, एज एन इंडिविजुअल हमें अनलिमिटेड पावर है, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सपोर्ट कर रहा हो। वो हमारी मैग्नेटिक पावर है। तो हम अपने से, अपनी ताकत से 12 गुना ज्यादा हम भी काम कर सकते हैं। कर नहीं पाते, हम उतना ही काम नहीं कर पाते जितना करना चाहिए, 12 गुना तो कहाँ होगा। तो हमने एक उसमें कोर्स डाला है, ट्यून योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपकी मैग्नेटिक पावर को कैसे जगाया जाए उसके अंदर, अफर्मेशंस विद अल्फा लेवल म्यूजिक। तो ये कुछ कोर्सेस हमने इंट्रोड्यूस किए हैं उस एप्लीकेशन के जरिए। और एक इस कोरोना के टाइम पर जो इतना बड़ा, सबसे बड़ा स्ट्रेस आ गया है, 2 तरह के लोग हैं इस कोरोना में सफर कर रहे हैं। जिनको कोरोना हो गया है, कोविड हो गया है, इसकी वजह से उनकी मेंटल लेवल पे इफेक्ट पड़ा। एक वो है जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और मेट्रोज में रहते हैं, जिनको कोरोना नहीं हुआ लेकिन इतना जबरदस्त स्ट्रेस हो गया है कि अपने वो रूम से बाहर भी नहीं निकलते, सिर्फ उनका पैकेट माइंड पे लॉकडाउन लग चुका है। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, माइंड पे लॉकडाउन लग गया। तो उनके लिए हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग एक टेक्निक डाली है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। वो उसको इंट्रोड्यूस किया है ताकि हर कोई उससे बाहर आ सके। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो हमने देख लिया था कि नॉर्थ इंडिया में अगर हिंदी ज्यादा है तो साउथ इंडिया में इंग्लिश ज्यादा है, तो दोनों के हिसाब से बनाए। ओके ओके, यस। सो हम लोग जो EFT का है उसका हम लोग थोड़ा सा डेमो देख सकते हैं, सो दैट कि पता चले लोगों को कि वो वर्क कैसे करता है। बिकॉज आई नो, आई एम श्योर कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं कि थोड़ी ना थोड़ी तो उनमें हिचक होगी, थोड़ा सा एंजाइटी होगा, थोड़ा सा डिप्रेशन भी होगा। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे के साथ मिले नहीं है, इसी वजह से डिप्रेशन में है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐसा ही है। कल रात में भी मुझे एक ख्याल आया कि यार हाय, मेरे बेटे ने 1 साल से किसी भी फ्रेंड से बात नहीं की है, मतलब फिजिकल लेवल पे। फिजिकल मतलब लेवल। इससे और ज्यादा क्या बुरा हो सकता है। बिकॉज ऑफ आई एम अ माइंड ट्रेनर, लाइफ कोच, सेकंड थॉट ये आया कि ठीक है, ये फैक्ट है, ये सिचुएशन है, मैं क्या कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। दैट एटीट्यूड शुड कम कि यार ठीक है ये है, बट अभी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं एक जूम कॉल करवा के दे दूं, राइट? सारे बच्चों को एक साथ मिला के वो खुद से, क्योंकि स्कूल में ऐसा रहता है कि उनका 20 मिनट 30 मिनट्स का जो सेशन रहता है उसमें टीचर रहती है, तो वो अपने आप से या फ्रेंड्स के साथ बात नहीं कर सकते। इतने तो फ्री नहीं हो पाते। हाँ, तो वो फ्री नहीं हो पाते। अब क्या कर सकते हैं, सबके ग्रुप्स है व्हाट्सएप के, जूम कॉल करवा के दे दो, कोई तो इनिशिएटिव ले। क्यों ना मैं ले लूं वो इनिशिएटिव। बहुत तो बढ़िया आइडिया। वो एक थॉट मतलब आया कि यार ये फायदा है माइंड ट्रेनर होने का, क्योंकि मेरा फोकस पॉसिबिलिटीज पे है, मेरा एग्जैक्टली। फोकस जो हो रहा है उस पे नहीं है। ये सिचुएशन है, मुझे इससे बाहर निकलना है, और खुद को नहीं, सारे लोगों को निकलवाना भी है। इसीलिए ये सारे सेशंस करने का मिशन वही है कि यार नहीं, पॉसिबिलिटीज है, जस्ट यू हैव टू चेंज योर फोकस। एग्जैक्टली। जो आपकी पंच लाइन है, वॉरियर और वरियर, तो ये वॉरियर ही था। आपने अगर छोटा सा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया जो बड़ा था, तो देन यू आर अ वॉरियर, यू आर नॉट अ वॉरियर। तो यहाँ ही तो अच्छा, हमें क्या लगता है कि हमें बॉर्डर पे जाके जंग, हमें अगर आज मौका मिले तो हम आज जाके लड़ाई लड़ लें। अरे भैया, जो घर की जो सिंपल लड़ाई है ना, उसको जीत लें, दैट इज अ कॉल्ड वॉरियर। तो वो यस, आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत बढ़िया आइडिया था। यहीं से सॉल्यूशन निकलता है, इफ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, और वो आपके चेहरे से दिखेगा, वो आपकी एनर्जी बोलेगी, वो तो साइंस है। या और वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। मतलब वो एक जो लाइफ मैंने गुजारी है कि जहां पे स्टक थी, सॉल्यूशंस नहीं दिख रहे थे, जब फिर मैंने जब खुद पे काम करना शुरू किया कि मैं क्या कर सकती हूँ खुद के लिए, या क्या पॉसिबिलिटीज है कि मेरे और बाकी लोगों के, मेरे फैमिली के, मेरे फ्रेंड्स के रिलेशंस अच्छे हो जाए,
कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ? सी, आप लोग दूसरे को नहीं चेंज कर सकते, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, देन यू कैन सी द होल वर्ल्ड इज चेंज फॉर यू। यू आर द राइट एग्जाम्पल, यू हरसेल्फ यू आर अ राइट। जैसे मुझे नहीं पता ऑडियंस को पता है नहीं पता, मुझे आज भी वो दिन याद है जब स्मिता मैम को फेसबुक लाइव आना था तो उनका पहला कुछ नहीं था, सर इट्स नॉट पॉसिबल, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वो अपने आप ट्रस्ट आया, आज आप इंटरव्यू ले रहे हो, आज आप सेशन ले रहे हो, दैट इज अ चेंज, अ मिरेकल ऑफ 12। ये है अनलिमिटेड पावर ब्रेन कि जो जिस आपका फील्ड अलग था, 12 साल आपने एक फील्ड में दिया, और साइंस बोलती है 40 डेज में आपकी हैबिट बन जाती है, तो आपने 12 साल दिए, कहाँ 40 दिन में हैबिट बनती है, 12 साल आपने एक फील्ड को दिए, फिर आप उस फील्ड को छोड़ते हो, नए फील्ड को ग्रैब करते हो, उसके अंदर आप जाते हो, उसके अंदर आप सक्सेस लेते हो। यही तो पावर है, और क्या अनलिमिटेड पावर होती है? कोई हमें 10,000 किताबें तो ना याद करनी है, हमें तो यही तो देखना कि हमारी पावर क्या है, हम किस सिचुएशन में किस तरह डील करते हैं, यही तो है। बिल्कुल। दैट इज वेरी ट्रू। एंड आप में से पूछ रहे थे ईएफटी के बारे में। ईएफटी, मच ग्रेटिट्यूड टू द पर्सन हु इन्वेंटेड दिस टेक्निक, मिस्टर गैरी क्रेग। दिल से धन्यवाद है उनको जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको इन्वेंट करने के बाद उन्होंने इसको फ्री रखा सबके लिए। बिल्कुल। बहुत सिंपल है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर आपको स्ट्रेस कहाँ से आता है, आपको सपने कहाँ से आते हैं, आपको सोच जो आप सोचते हो आप कहाँ से देखते हो, आंखों के अलावा ना, आप आंखें, यहाँ पर आप सोचते हो, यहाँ आपको दिखता है इन बिटवीन योर आईब्रोज। तो अगर यहाँ से वो थॉट बाहर निकाल दिया जाए तो आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। आपके अगर, जैसे अगर आपको घर मजबूत बनाना है, हाई राइज बिल्डिंग बनानी है, घर मजबूत बनाना है, तो आप क्या करोगे? आप नींव पे वर्क फाउंडेशन। करोगे या ऊपर ज्यादा सामान डालोगे? आप ऑब्वियसली फाउंडेशन। स्ट्रॉन्ग करोगे, रूट्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे। सेम विद द ईएफटी। ईएफटी इज लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिन। व्हाट डज इट मींस? वो आपको क्योर करती है अंदर से, बाहर से नहीं। तो जब अंदर से वो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया, हाँ, लेकिन वो बहुत फास्ट काम करती है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत टाइम लगेगी, वो बहुत फास्ट काम करती है, लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन लेके आती है वो, उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। क्या है इसका नाम है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ईएफटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सीक्वेंस। इसका सही सीक्वेंस पे फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैंने कई अभी कुछ वीडियोस देखे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, इतने बड़े बड़े मैं चुका। वन सेकंड, या गो अहेड सर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर लोगे। अगर आपको आज खाना बनाना है, अगर आपको आटा गूंदना है, आपको सब्जी बनानी, चाय बनानी है, तो उसका एक सीक्वेंस है ना, पहले क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऐसा थोड़ा ना जो मर्जी मैंने कर लिया, ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगा। द सेम विद द ईएफटी आल्सो, देयर इज अ सीक्वेंस यू हैव टू फॉलो। द सेकंड, देयर इज अ पॉइंट। जैसे अगर किसी के घर का एड्रेस 3/129 है, तो उसी के घर की बेल बजानी पड़ेगी ना आपको। 3/128 में जाओगे तो बेल तो 3/129 वाला बाहर नहीं आएगा। सेम विद ईएफटी, जहां जो पॉइंट है वहीं अगर टैप करोगे तो ही रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सिर्फ ये दो थंब रूल अगर हम याद कर लें तो ईएफटी के रिजल्ट्स अप्रॉक्स डबल हो जाते है। बिल्कुल। क्या आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी स्टोर है, उस एनर्जी को अगर जैसी भी है, अच्छी बुरी, यहाँ पे हम आपको जज नहीं करने वाले कि आप में एनर्जी अच्छी है या बुरी है, जो भी है वहां से हमने खाली किया और नई एनर्जी को डाल दिया, इतना सा ही हम काम करते हैं। कैसे? जैसे दिवाली के टाइम पर आपके घर में सारा कचरा तो नहीं होता ना, सफाई करते हो आप, कुछ पुराने सामान होते हैं जो अच्छे पड़े होते हैं, लेकिन फिर भी आप निकाल देते हो और फिर एक नया बहुत ब्यूटीफुल कुछ आप ऐसी चीजें लेके आते हो जिससे आपका घर सुंदर दिखे। सेम विद ईएफटी। तो पहला पॉइंट है आपका है दिस लेफ्ट हैंड के। सर, हम लोग सबको वीडियो ऑन करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ओके? हाँ प्लीज प्लीज, या प्लीज, बहुत बढ़िया। ओके, मैं सबके लिए, ओके, प्लीज वीडियो ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच विवेक सर। स्टार्ट योर वीडियोस फ्रेंड्स, so that, Smita, yeah, I cannot start my video. You cannot start your yeah, video yeah, yeah, because okay, okay, I'll let you know. Yeah, okay. Okay.
Everyone, Rajni Sharma, please start your video. Raj sir, start your video. Poonam, I think you have to start my video. It is saying that you cannot start the video okay, because of the host test. okay. Now check. Yes, yes. Yes, sir. Now we can start. Okay, first remove your specs if you are having. Okay, अभी हम पहले 9 पॉइंट्स को देखेंगे, कौन से 9 पॉइंट्स हैं, फिर हम साथ में एक अफर्मेशंस का एक राउंड करेंगे। एंड बिलीव मी, इसके बाद में एक आपके लिए सरप्राइज भी है जो स्मिता मैम आपको बताने वाले हैं। Yes. तो फर्स्ट पॉइंट है आपका लेफ्ट हैंड ऐसे उठा लीजिए, ये आपका कराटे चॉप, जो कराटे चॉप है इस पे आपको टैप करना है इस एरिया पे। इससे राइट हैंड की फर्स्ट ये जो 4 फिंगर्स हैं, जो टिप्स है, इससे करना है। यहाँ पर एनर्जी पॉइंट है लाइक दिस। तो टैपिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको लगे कि टैप कर रहे हो, बहुत सॉफ्ट नहीं, बहुत हार्ड नहीं। द फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट इज इन बिटवीन योर आईब्रोज, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं, वेयर वी पुट अ टीका ओवर हियर ना। सेकंड पॉइंट इज eyebrows with first two finger tips. Third point, where your eyebrows are ending, like this. Third point, fourth point, where your this eyeballs के नीचे, आंखों के नीचे एक आपके बोन है, इस बोन पे बहुत मजा आएगा जब यहाँ पे आप टैप करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज, आपको देखो भगवान ने यहाँ पे जगह बना के दी है, अंडर योर नोज, अपर लिप, देन चिन। ये वैसे भी आपके लिए एक फेशियल मसाज हो जाएगा, तो वैसे भी बिल्कुल। देन योर कॉलर बोन, यहाँ पर एक बोन है जो बाहर निकली हुई है, इस कॉलर बोन पे आप कीजिए, इस कॉलर बोन पे, यस लाइक दिस, वंडरफुल। एंड द एथ पॉइंट इज योर आर्मपिट्स। अब आर्मपिट्स बाय नेचुरल वहीं आपके हाथ जाएंगे, इस ऊपर नीचे जाएंगे नहीं, अगर आपको किसी तरह का शोल्डर स्पाज्म नहीं है तो, या फ्रोजन शोल्डर नहीं है तो वहीं जाएंगे। एंड द लास्ट 9 पॉइंट इज जहां से आप चोटी करते हो, द क्राउन चक्र। यहाँ ये देखो सारे पॉइंट कौन से हैं, आप उठा के कोई पॉइंट उठा लीजिए, सब आपको बाय नेचुरल गॉड ने बना के दिए हैं। इतना बेस्ट क्रिएशन करके देता है वो, आपको हर पॉइंट का आपको आइडिया देता है। यहाँ पे एक भंवरा होता है ऑब्वियसली, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो लाइक दिस। ये आपके 9 मेरिडियन पॉइंट है और इसी सीक्वेंस में चला जाता है। जो अभी थोड़ी देर पहले स्मिता मैम ने बोला था कि हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, एक्सेप्टेंस कम है, तो यहाँ पर हम उसी मिस्टेक को दूर करते हैं। अब क्या करेंगे हम, EFT के लिए पहला आपका लेफ्ट कराटे चॉप उठा लीजिए इस तरह, यहाँ पर टैप करेंगे, साथ में एक्सेप्ट करेंगे। मान लीजिए किसी को कोरोना हो गया है, हम किस तरह बोलेंगे, क्या बात करेंगे वो आप सुनिएगा और साथ साथ बोलिएगा, लेकिन आप अपने आप को म्यूट पे रखिए प्लीज। सो हाँ, मुझे कोरोना हो गया है, उससे मुझे शारीरिक परेशानी हुई है, लेकिन मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। हाँ, मुझे कोरोना हो गया है, उससे मुझे शारीरिक परेशानी हुई है, लेकिन मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। एक्सेप्ट योरसेल्फ। यस, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोरोना, आई हैव अ फिजिकल चैलेंजेस, बट I accept myself. Now second point, this one in between your eyebrows. Yes, I am suffering, but I am okay. Yes, I am suffering, but I am okay. Yes, I am suffering, but I am okay. यहाँ पे आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो और अपने आप को अफर्मेशन दे रहे हो कि आप ठीक हो। आप चाहे हो या नहीं हो, लेकिन अपने आप को बताना है आप ठीक हो। फिर आपका थर्ड पॉइंट, जहां पर आईब्रोज एंड हो रही है, अपने आप से पॉजिटिव बात करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं है। आई एम फीलिंग ओके, आई एम फीलिंग ओके, आई एम फीलिंग ओके। देन आपकी आईज के नीचे इस बोन पे, इस हड्डी पे, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी। फिर आपकी नोज के नीचे, I am mentally strong,
I am mentally strong. I am mentally strong. ये अफर्मेशन आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में, अपनी खुद की भाषा में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हिंदी या इंग्लिश में करना है, जिसमें आपको सही लगे वहां उसमें आप कर सकते हो। फिर आपके चिन्ह पे आ जाइए, I am physically and mentally strong. I am physically and mentally strong. I am physically and mentally strong. फिर आपकी कॉलर बोन पे आ जाइए, इस पॉइंट पर, I am feeling happy. I am feeling happy. I am feeling happy. फिर आपके आर्मपिट्स पे, I am happy and safe. 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 The last point, I am in bliss. I am in bliss. I am in bliss. Then just close your eyes and just feel the sensation in your body and feel the level of stress. Now it's decreasing point by point. Slowly open your eyes. इतनी देर का ही है, इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार आप रिपीट कर सकते हो, दिन में 2 या 3 बार भी कर सकते हो, इसी राउंड को बार बार रिपीट कर सकते हो 3 टाइम्स तक। एंड बिलीव मी, इससे आसान तरीका नहीं है और इससे बेस्ट तरीका नहीं है, सबसे बढ़िया और रिसर्च प्रूवन टेक्निक है ये। पता नहीं कितने शोल्डर्स पे अपनाई गई, बट यू हैव टू, आपको ट्रस्ट रखना होगा अपने आप पर। हमें तो इस टेक्निक के बारे में पता है, आपको अपने आप पर ट्रस्ट रखना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इवन अगर सिंपल एसिडिटी भी है उस पे भी वो काम करता है। आई हैव अप्लाइड दैट फॉर माई सेल्फ एंड डेफिनेटली इट वर्क्स मिराकुलसली। यस, नाउ I request if you guys have any questions, you can ask sir, because we are heading towards the end of the session. कुछ queries है आपके? Poonam, you asked that. Yes sir, Vivek sir, go ahead. You are mute. You are mute. No, my question is like for any kind of like we are living in this current situation. So like any kind of we are dealing with uncertainties like corona and other things. So any kind of like so that is we can have some information on that, right? We can apply the EFT, sir. You want affirmations? Yes. No. Yes sir. यस सर, यू अभी सुमिता मैम अभी एक लिंक शेयर करेंगे, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और एक कोड आपको सुमिता मैम अभी शेयर करने वाले हैं। उस एप्लीकेशन के बाद उस वर्कशॉप का फ्री में देख भी पाएंगे। ओके ओके सर। उसमें अफर्मेशन भी है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के अफर्मेशन। ओके सर, ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, so some fears also everything can remove with this, right, sir? EFT ट्रॉमेटिक, अगर ट्रॉमेटिक सिचुएशन भी हो तो भी इसमें काम करती है। ट्रॉमेटिक का मतलब ये होगा कि बहुत ही एडवर्स सिचुएशन हो और ऐसा बहुत ज्यादा ट्रॉमा देख लिया हो तो भी उससे वो फियर बाहर निकल जाता है, और छोटे से छोटा फियर और बड़े से बड़ा फियर भी बाहर आएगा। ये ब्रेन की पावर है, ये ब्रेन की। So in short, I'll summarize what we have actually learned and understood in this session. First message to every parent is that कि आप अपने वॉल पे, मिरर पे लगा दो कि बच्चे देख रहे हैं और बच्चे देख के सीख रहे हैं। बिकॉज ये इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग थॉट है कि आप इसको समझ लिए तो आपकी पेरेंटिंग आसान हो जाएगी। जो भी आपकी मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएगी। आपको लगता है कि बच्चा सुन नहीं रहा है, आपका बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा है, इसके लिए रीजन भी आप ही हो कहीं ना कहीं, राइट? हम लोग बहुत ज्यादा कहते कि यार मोबाइल देखते देखते बच्चा खा लेता है। 1 साल का 2 साल के बच्चे को पहले से ही हम लोग हैबिट लगा चुके हैं और फिर बोलते हैं कि यार इसकी हैबिट नहीं छूट रही है, हम क्या करें उसके लिए? हैबिट तो आप ही ने लगाई है, राइट?
तो आप ही को सोचना पड़ेगी कैसे करें। कि पहले जैसे होता था कि हम लोग बाहर चिड़िया दिखा रहे हैं या किसी एनिमल को दिखा रहे हैं या बुक को देख रहे हैं, देखते देखते हम लोग उसको खाना खिलाए, ये चीजें हम लोग कर ही नहीं रहे, बिकॉज हमारे लिए वो इजी ही नहीं है। हम लोग का ऐसे लगता है कि हाँ इसके हाथ में मोबाइल दे दिया और दूसरे हाथ से खाना डाल दिया, वो खा रहा है, बट वो खाना नहीं रहा है। मतलब एक तो पहला वो टेस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज उसका माइंड एंड ब्रेन पूरा वो वीडियो में है या मोबाइल में है, तो वो टेस्ट नहीं कर रहा है, क्या खा रहा है उसको पता नहीं है, बस हाँ वो अपनी पेट को भर रहा है, वो फूड उसके काम का कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट थिंग कि आप अपने आप को चेंज करना चाहिए, तब जाके वो अपना बच्चा चेंज हो जाएगा। तो दूसरा ये है स्टोरी टेलिंग का। जो भी आपके अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स थे, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये स्टोरी बता के वो एम्पावर हो सकता है, तो ऐसी स्टोरीज अपनी लाइफ से या अपने दादा दादी से या नाना नानी से वो शेयर करने के लिए बोलो, खुद भी करो और बाकी लोगों को, घर के परिवार के लोगों को भी शेयर करने के लिए बोलो, क्योंकि बच्चे पे ज्यादा काम तो स्टोरीज ही करते हैं। मुझे याद है मैं मेरे बेटे को हमेशा महाभारत, शिवाजी महाराज, इन सब की स्टोरीज सुनाती थी। तो मतलब लगभग ऐसा होता था कि रात में 10-10 स्टोरियां वो सुन लेता था। उसका इम्पैक्ट ऐसे हुआ जब मैंने प्री स्कूलिंग के लिए उसको डाला, तो उसकी टीचर ने बोला कि क्या है ये ब्लॉक्स देती हूँ उसकी तलवार बना देता है, मैं उसको जो भी चीजें देती हूँ उसका वो ढाल या कुछ ऐसी, मतलब जो वॉरियर्स के वेपन्स होते हैं ना वैसे ही बनाता है। तो मैंने बोला कि ये सारा इफेक्ट मेरी स्टोरीज का है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। तो ऐसे ही वो डेवलप होते हैं। यहाँ पे सुविता भी है, वो भी प्री स्कूल रन करती है, आशा है वो भी प्री स्कूल रन करती है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वहीं से पता चलता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। जैसे मुझको पता चला कि यार उसका इंटरेस्ट वेपन्स में ज्यादा है, हाँ उसके लिए वजह मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही वैसे स्टोरीज, क्योंकि मुझे वो वॉरियर, लेजेंडरी ऐसे वाली ज्यादा इम्पैक्ट करते थे। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने वैसे ही किताबें पढ़ी थी, तो वही इम्पैक्ट ज्यादा था, तो उस पे वही इम्पैक्ट है। तो अच्छा लगता है कि वो हर एक चीज को वो चैलेंज की तरह लेता है। तो ऐसे ही वो हम लोग परवरिश कर सकते हैं। देयर इज नो अदर मतलब वे टू पेरेंटिंग। और यस, थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि घर के कामों में उनको इन्वॉल्व करो। फोर्थ बात ये बताना चाहूंगी कि आपके जो भी इंटरेक्शंस है, इंटरेक्शन स्टार्ट विथ उनको सुनना है, इस इंटेंशन से स्टार्ट करो, ना कि आपको अपनी बातें, अपनी चीजें उनपे इम्पोज करनी है। जब भी इंटरेक्शन हो रहा है, जब भी बात आपके उनकी सुन रहे हो, तो वो सुनने के लिए हम लोग रिएक्ट होते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते बच्चे को भी। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगी हम लोग कैसे उनको रिस्पॉन्ड दे। बच्चे को सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट लगता है कि मेरे माँ बाप सुने, यही उनका दुखड़ा रहता है कि यार मेरे माँ बाप सुनते ही नहीं है मेरी बात। तो ये है कि आप सुनो, देन यू गिव योर व्यूज। और थर्ड चीज ये, फिफ्थ चीज मैं ये बोलूंगी, आपको जो भी आदतें उनको लगता है कि हाँ वो इनकलकेट करनी चाहिए, आस्क योरसेल्फ, डू आई हैव दैट हैबिट? फिर मैं कैसे बोल सकती हूँ कि हाँ मेरा बेटा भी वैसे ही करना चाहिए। तो फर्स्ट, अगर मैं खुद एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं खुद टीवी देखते देखते खाना खा रही हूँ, मैं खुद अगर मोबाइल देखते देखते सो रही हूँ, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई किड, राइट? तो वही सिंपल सी चीजें हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। और डू नॉट फॉरगेट, बच्चे देख रहे हैं और देख के सीख रहे, बस इतना ही आपने समझ लिया ना, तो पूरी पेरेंटिंग इजी है, पूरी पेरेंटिंग। थैंक यू सो मच। और यस, मैं ये शेयर करती हूँ लिंक जो ब्रेन इन्फिनिटी का
गूगल ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं ब्रेन इन्फिनिटी का, और उस पे रेफरल कोड चैट बॉक्स में मैं डालूं सर? हाँ, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, यहाँ पे आप बोल भी दीजिए, आप उसकी स्पेलिंग बोल भी दीजिए। यस, सो चैट इसका रेफरल कोड है माइंडफुल ब्रेनी। सर आप इसके फायदे बता दो, मतलब माइंडफुल ब्रेनी रेफरल कोड डालने के बाद उनको क्या? ये इसमें 2 तरह की वर्कशॉप डली हुई है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के ऊपर। इस वर्कशॉप का नाम है BSF। जैसे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती हैं, हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती है, वैसे ही हमने वर्कशॉप बनाई है जिसका नाम रखा हमने, उसी से हम इंस्पायर हुए हैं, BSF से, बी स्ट्रेस फ्री। ये क्या करेगी, आपकी बॉडी को मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बना देगी अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो। इस कोर्स को जो चार्जेस हैं वो, क्योंकि स्मिता मैम नाउ इज एसोसिएट पार्टनर, उनकी जो कंपनी है माइंडफुल ब्रेनी हमारे एसोसिएट पार्टनर है, सिर्फ इनके कोड की वजह से आपको वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आप दोनों वर्कशॉप देख सकते हो, चाहे हिंदी में देखना चाहो चाहे इंग्लिश में देखना चाहो। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, उसमें 2 तरह की वर्कशॉप है। अगर किसी को कोरोना हो गया तो उससे कैसे बाहर आना है तो उसकी वर्कशॉप भी है। किसी को कोरोना नहीं हुआ लेकिन एनवायरनमेंट उसको स्ट्रेस दे रहा है तो उसकी वर्कशॉप भी है, अफर्मेशन के साथ, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। उसको आप बाद में अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोलना चाहे तो भी कर सकते हैं। वो माइंडफुल ब्रेनी अगर आप रेफरल कोड डालेंगे तभी आप उसको फ्री में देख पाएंगे। यस, एप्पल नहीं है, एप्पल नहीं राइट है, सर? अभी हम वेब पर हैं, वेब पर हैं और प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर्स पे और वेब पे है। वही वेब पूनम, पे। that is for you. Okay. I Brain have Infinity. हाँ. Yes, I go just ahead. want, it's just a query, like, as you know that I'm running a preschool, so how I can use these techniques for my students because they are very small. मैम यस, ऑब्वियसली दे आर वेरी स्मॉल, तो अभी उनके लिए नहीं है। लेकिन जैसे जो आप क्योंकि प्री स्कूल कर रहे हैं, तो मैं भी प्री स्कूल चलाता हूँ, मेरे भी किंडरगार्टन स्कूल्स हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा किसी को डार्कनेस की वजह से फियर है, किसी को लिजर्ड का फियर है, किसी को कॉकरोच का फियर है, किसी को मैथमेटिक्स का फियर शुरू हो जाता है, किसी को स्टडी का है। तो उस ट्रॉमेटिक या उस तरह के फियर से बाहर लगाने के लिए 5 से 6 साल का भी बच्चा है तो भी टैपिंग पे काम करेगी। बट यहाँ पे बट आ जाएगा, अगर आप उनके पेरेंट्स को करा दो, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लो, तो और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और इसके बाद आप इसे पे कनेक्ट कीजिएगा, आप स्मिता से नंबर ले लीजिएगा। आपको मैं एक और टूल बताऊंगा जो हम अपने स्कूल में यूज कर रहे हैं, उससे हमें काफी बेनिफिट्स भी हुए हैं, वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। मैं उनका नंबर और डिटेल्स चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, यू कैन कॉपी इट। ईमेल आईडी भी है, यू कैन कॉपी इट फ्रॉम चैट बॉक्स। ओके, तो मैं इस वर्कशॉप का या सेशन का फीडबैक फॉर्म है, प्लीज फिल कर देना। आई मस्ट अप्रिशिएट स्मिता मैम, आपने बिल्कुल बड़ा स्ट्रीमलाइन, बड़ा ही प्रोफेशनल वे से इसको स्टार्ट किया है। वंडरफुल। Yes, thank you, sir. Thank you very much. You are the inspiration. You are the motivation. आपने जो बीज रोया है उसका तो पेड़ बनेगा, और इतना बड़ा बनेगा कि आप भी मतलब बोलेंगे yes, this is what I really wanted. मैं ऑटोग्राफ लेने पहले आ जाऊंगा। पर एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा मैं मैम, एक सेकंड। Yes, sir. शेयरिंग से मुझे नहीं पता किसको